Hello friends. So today is session maybe talk about the integrated pack. So we start with the definition actually. The definition is very straightforward. Integrated pack hota kya hai? See, the integrated pack is a tool which help the government to fight the corruption in the public procurement. Now अगर आपने मेरा definition बहुत clearly सुना रहेगा तो what I'm saying it's a tool. Very first point, and then it helps the government to fight the corruption in the public procurement. तो जो फुल डेफिनेशन है इंटीग्रेटेड पैक की वो जिस चार पैरामीटर पॉइंट में आपका कैप्चर होता है. So we discuss one by one, and definitely this all 4 points will be explained in detail throughout this session. So first we go with the point number 4 where we are talking about the public procurement. So I think that this everyone knows that what's a public procurement. So public procurement is a process by which the government procure or take the services from the external party. Now, who are the external parties? आपकी जो private companies हैं, they are the called the external parties actually, or private company, right? Now the question is this: why the government procure the goods or services from the private party? See, अभी suppose आपका state government हो या central government हो, they have to do lot of public welfare activities like they want to construct the dam, देन उनको ब्रिजेस बनाने होते हैं रोड्स हो गया आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल एक्चुअली सो व्हाट हैपन इसका जो भी प्रोसेस है कंस्ट्रक्शन करने का एक्टिविटी का वी हैव अ स्पेशलाइज्ड companies in the India itself or you can say that external parties who can do for the government के लिए so because of that only government क्या करती है they float the tender for the parties or invite the parties to carry out this type of work. Right. So this is what the public procurement is all about. So now the we left with 3 points. This why we are the very first is कि हम integrated pack को tool क्यों बोल रहे हैं and then why we are so specifically talking about it help government को ही and then definitely corruption को. So first we go by one session के साथ. So first we see कि integrated pack के अंदर जो content है वो होता क्या है. तो typically if I'm talking about integrated pack तो एक्चुअली वो पैक के अंदर होता क्या है कंटेंट क्या है उसका तो कंटेंट एक्चुअली टिपिकल सम 7 to 8 आर्टिकल्स होते हैं और समवन से सेक्शन और क्लॉजेस इन दिस केस वी टॉक अबाउट आर्टिकल तो मींस वी से आर्टिकल ओनली तो वो टिपिकल आर्टिकल्स कौन से होते हैं सी दे आर वेरी टिपिकल आर्टिकल्स है कमिटमेंट बाय द ओनर और प्रिंसिपल दे आर बोथ डिपेंड कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट में किसको क्या बोला है बट लाइक कमिटमेंट्स बाय द ओनर then commitments by the bidder, then we have a disqualification. Now, what do if broadly I have to tell you, disqualification means what कि अगर suppose आपके bidder ने अपने commitment से breach किया, then how owner can disqualify the bidder, वो सब point provisions होते हैं. Then consequences of breach. Now again अगर owner के पास क्या rights या remedies available है in case अगर आपका जो bidder है उसने अपने commitment से ब्रीच किया है अपने कमिटमेंट में ब्रीच किया है देन प्रीवियस ट्रांसग्रेशन नाउ इन दिस केस व्हाट हैपेंड इसमें ऐसा होता है कि जो बिडर होता है उसको डिक्लेयर करना पड़ता है पब्लिकली कि मैंने प्रीवियसली कोई ऐसा कुछ डिफॉल्ट नहीं किया या कोई ब्रीच नहीं किया है बिडिंग प्रोसेस में या अपने जो कमिटमेंट्स मैंने की हैं उसमें मैंने डिफॉल्ट नहीं किया है राइट देन आता है का इक्वल ट्रीटमेंट नाउ इन इक्वल ट्रीटमेंट टिपिकली both owner as well as contractor will declare कि like says owner make sure कि वो हर एक bidder से this integrated pack को sign करवा के लेंगे means suppose इस एक bidding process में आपके पास 3 bidder हैं तो he'll make sure कि every bidder will sign the integrated pack and then contractor और sorry bidder also will make sure कि जो उनके सब contractors रहेंगे जिनसे वो document share करे during bidding process उनसे भी वो सिमिलर टाइप में एक इंटीग्रिटी पैक साइन करके लेंगे या मेक और टिपिकली हम बोलते हैं बैक टू बैक इंटीग्रिटी पैक साइन करने के लिए तो दिस टाइप ऑफ कमिटमेंट्स आर विच सेज इक्वली ट्रीटमेंट के आर्टिकल में आपका होता है प्रोविजंस देन वी हैव अ ड्यूरेशन ड्यूरेशन अगेन इट्स इफेक्टिव एंड टिल व्हाट आपका इंटीग्रिटी पैक वैलिड रहेगा
एंड देन वी हैव अ टिपिकल जर्नल प्रोविजंस। तो जर्नल प्रोविजंस में आपके टिपिकल बॉयलर प्लेट क्लॉजेस होते हैं, जैसे कि सर्विबिलिटी, फिर देन लॉ ऑफ गवर्निंग लॉ आपका हो गया, एंड ऑल दोस प्रोविजंस आर कैप्चर्ड इन जनरल प्रोविजन। नाउ व्हाट मेक्स दिस इंटीग्रिटी पैक सो स्पेशल, कि इसमें एक्चुअली आपका एक प्रोविजन है कॉल्ड इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर। इन शॉर्ट उसको हम आईईएम बोलते हैं। नाउ दिस इज अ वेरी टिपिकल provisions we have integrated pack, and that's the reason it's a special tool what we says. So to go detail one by one article, we start with first आपका independent external monitor के साथ, right? So typically what we everyone knows that कि अगर जब भी हमारा जैसे कि ओनर और ये दो पार्टीज हैं, इनके बीच में कुछ आपका बिडिंग प्रोसेस हो रहा है, सो व्हाट हैपन, जो ऑर्गेनाइजेशन रहता है, दे हैव सेट सम guidelines or process to follow for the procurement activity, and which definitely both the parties को comply करना पड़ता है। They are both the owner as well as the contractor or bidder supposed to obligate these guidelines or process to be followed. So what this independent external monitor will do, he'll make sure he monitor this process कि both the parties obligate कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। And as the very first word says independent, so definitely he is not associated with the owner and not associated with the contractor or bidder in this case, right? So this is what the main purpose of independent external monitor का, कि वो bidding process को पूरा monitor करता है, and वो जब भी चाहे किसी से भी document ले सकता है। This is power given through integrity pact. तो इंटीग्रिटी पैक ये सब पावर देती है। सो लेट्स डीप डाइव टू अंडरस्टैंड कि जो आपका इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर है उसके पास क्या क्या पावर्स हैं और उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। तो नाउ विल सीज की फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका आईईएम है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं आईईएम, इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर, उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया में नॉर्मली क्या है कि दे आर दी एमिनेंट पर्सनैलिटीज। एमिनेंट पर्सनैलिटीज होती हैं, दे आर कॉम्पिटेंट एंड क्रेडिबल इन नेचर। सो एक्चुअली होते कौन है, टिपिकली ये पीएसयू बैंक्स में आपके जो सॉरी पीएसयू कंपनीज होती हैं, उन और इवन बैंक्स भी, उनके एमडी या आपके ईडी लेवल के पर्सन होते हैं, रिटायर्ड पर्सन होते हैं, मोर स्पेसिफिकली आई एम सेइंग, राइट। एंड गवर्नमेंट ने ऑलरेडी गाइडलाइंस दे रखी है कि जो भी इंडिपेंडेंट मॉनिटर होता है वो कैन वर्क इन अ स्ट्रेच 3 इयर्स का उनका टेन्यूर रहेगा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एंड उनका अपर एज लिमिट 70 इयर्स तक दे रखा है। एंड एट अ टाइम कोई भी पर्सन है हु इज वर्किंग एज ए इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर कैन सर्व इन 2 ऑर्गेनाइजेशन। वो 2 ऑर्गेनाइजेशन में एज ए आईईएम वर्क कर सकता है एट ए टाइम, राइट। नाउ इनका सिलेक्शन कौन करता है, एवरी ऑर्गेनाइजेशन के पास पावर है कि वो इनका सिलेक्शन करे, मतलब खुद से ही दे कैन सिलेक्ट दिस इंडिपेंडेंट मॉनिटर को, इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर को, right? So this is what the criteria, and then what whom to report, जो independent monitor है वो किसको report करेंगे, they can report to जो organization है उसके MD को, and second they are reporting to chief vigilance officer। तो ये दो persons हैं to whom this IM give submit his report। अब ये टिपिकल रिपोर्ट्स क्या होती है कि लाइक उनके कुछ ऑब्जर्वेशंस रहेंगे बिडिंग प्रोसेस में, या सम रिकमेंडेशंस रहेंगी, वो सब। अपार्ट ऑफ दैट, सपोज ड्यूरिंग बिडिंग प्रोसेस में वन ऑफ द बिडर फाइंड कि उसके साथ अनफेयर हो रहा है, अनजस्टिस हो रही है, या सम अदर बिडर ने कुछ माल प्रैक्टिसेस किए हैं या ब्रीच किया है, then in that case what happened, that bidder itself can approach IEM, कंप्लेन कर सकता है उसको आईएम को। एंड देन नॉर्मली टिपिकली आईएम व्हाट ही डू, अराउंड 5 to 6 वीक्स में ही सबमिट द रिपोर्ट टू द एमडी। वो एमडी को रिपोर्ट देता है वो जो भी कंप्लेन का। नाउ नाउ दिस इज वन ऑफ द पिकुलर थिंग कि एमडी इज नॉट बाउंड टू जो आईएम ने रिपोर्ट दिया है उसको ऑब्लिगेट करे या उस पे कुछ एक्शन ले। तो दिस इज समथिंग व्हिच एमडी का प्रीव्यू है कि वो रिपोर्ट पे क्या एक्शन लेगा, ठीक है। So this is something which IMD को have to look out
ठीक है। एंड सपोज कि अगर आईएम को लगा कि जो रिपोर्ट दिया है एमडी हैव नॉट टेकन, एमडी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन राइट, हैव नॉट टेकन एनी अप्रोप्रिएट एक्शन, उन्होंने कुछ अच्छे से एक्शन नहीं लिया है, तो व्हाट ही डू, ही कैन आल्सो रिपोर्ट टू द चीफ विजिलेंस ऑफिसर को भी। तो दिस इज व्हाट एक्चुअली आईएम का सिलेक्शन एंड टिपिकली रिपोर्टिंग पार्ट हो गया। नाउ विल सी कि एग्जैक्टली वो करते क्या है ड्यूरिंग बिडिंग प्रोसेस में। तो ऑलरेडी हमने प्रीवियस थोड़ा टच कर ही लिया था इस पॉइंट को कि डेफिनेटली दे लुक आउट दी बिडिंग प्रोसेस में। वो जो बिडिंग प्रोसेस होती है उसको लुक आउट करता है एज ए एक्सटर्नल, इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल पर्सन की तरह। एंड वो he'll मेक श्योर कि both the parties, owner as well as the contract और bidder, should obligate the जो गाइडलाइंस दे रखी है ऑर्गेनाइजेशन ने, एंड जो कम्युनिकेशन हो रहा है वेरी थ्रू ट्रांसपेरेंट वे से कम्युनिकेशन हो रहा है, कुछ फ्लॉज होने नहीं चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस होने नहीं चाहिए, तो वो सब। एंड अपार्ट ऑफ दैट ड्यूरिंग बिडिंग के टाइम पे ही कैन कॉल अपॉन एंड रिव्यू एनी डॉक्यूमेंट बट ही, उनको जो लगता है आईएम को कि मुझे कुछ डॉक्यूमेंट देखना है, ही कैन डू। So this is broadly what the IM ka role, right? Now we go to the next article, that is commitment by the principal or the owner. So this is owner. So owner के commitments क्या हैं? See, owner commit करता है कि वो कुछ undue influence नहीं लेगा या कुछ डिमांड नहीं करेगा फ्रॉम द बिडर से और एनी ऑफ द बिडर से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अ पार्ट ऑफ दैट he'll make sure he'll treat equal to all bidder, मतलब इक्वली ट्रीट करेगा बिडर, हर एक बिडर से, किसी को प्रेफरेंस नहीं देगा, व्हाट ही मीन बाय दिस वे। एंड देन व्हाट ही डू कि जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो सबके साथ इंफॉर्मेशन इक्वली शेयर करेगा, राइट। कि मीन्स किसी को कम ज्यादा इंफॉर्मेशन या किसी को जल्दी या अ, जल्दी या लेट में इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा, इक्वली, इक्वली और सेम टाइम में सबके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेगा। देन अ पार्ट ऑफ दैट वो किसी को स्पेसिफिकली कॉन्फिडेंशियल या एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं देगा, या होता है ना बीडर फेवरिज्म, कि वो किसी भी एक बीडर को कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा विच हेल्प देम फॉर द प्राइसिंग और बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए। तो दिस आर द टिपिकल रहता है। अलोंग विद दैट में वो क्या कमिट करता है कि सपोज, सपोज ड्यूरिंग बिडिंग प्रोसेस में समवन रेज द ऑब्जेक्शन कि कोई पर्सन है फ्रॉम द ओनर साइड में जिसने ये जो अबाउ कमिटमेंट्स को ब्रीच किया है, देन ओनर विल कंफर्म और कमिट दैट बिडर कि अप्रोप्रिएट एक्शन उस दैट पर्सन के अगेंस्ट में लिए जाएंगे, या अदरवाइज they will inform to chief vigilance officer to take appropriate action against that person. So these are the typical commitments are done by the owner. Now we have next is commitments by the contractor. Now again the contractor also give the commitments कि वो undue influence नहीं करेगा owner को, right? Means not it directly or indirectly way से। Apart of that जो bidders रहेंगे they'll make sure कि वो कार्टल नहीं करेंगे, वो प्राइस रैगिंग नहीं करेंगे, ना प्राइस फिक्सिंग या कंक्लूजन collusion नहीं करेंगे during bidding process। Then apart of that bidder also have to confirm कि जो भी इंफॉर्मेशन उनको मिली है थ्रू द ओनर टू फॉर द बिडिंग पर्पस, वो किसी थर्ड पार्टी को वो शेयर नहीं करेंगे, या वो किसी अदर पर्सन को वो इंफॉर्मेशन या डिटेल्स नहीं देंगे। और टिपिकली दे मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी। ओके। नाउ इसमें एक्चुअली क्या होता है कि अगर ओनर को लगता है कि वो जो डॉक्यूमेंट्स या कुछ डिटेल्स है वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल नेचर में है, तो वो टिपिकली एनडीएस भी साइन करवा लेता है इन बीडर से। सो अगर उसको लगता है कि ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल नेचर में है, तो नॉर्मली एनडी अगर साइन कर लिया तो दिस पर्टिकुलर पॉइंट ओवरलैप हो जाता है, राइट। नाउ एंड देन अपार्ट ऑफ दैट बिडर आल्सो कंफर्म्स कि भाई वो किसी और पार्टी को इंस्टिगेट नहीं करेगा कि ये सब जो कमिटमेंट्स किया है इसको ब्रीच करने के लिए, राइट। तो दीज आर द टिपिकल कमिटमेंट्स डन बाय द कॉन्ट्रैक्टर। नाउ नेक्स्ट आपका आर्टिकल आता है डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, कि अगर टेंडर प्रोसेस से वो डिस्क्वालीफाई कैसे होगा। नाउ सपोज जो बिडर ने कमिटमेंट्स की थी उसने वो उस कमिटमेंट से ब्रीच कर दिया, या उसने इंटीग्रिटी पैक को साइन ही नहीं किया, देन इन दैट केस व्हाट ओनर कैन डू, व्हाट ही सेज, वो बिडर, जो बिडर था उसको वो टेंडर प्रोसेस से ही क्या किक आउट कर देगा या उसको विड्रॉ कर देगा।
विड्रॉ या उसको निकाल देगा, बट वी सेज दैट। तो ये सब राइट किसके पास रहता है? ओनर के पास रहता है, इन केस अगर बिडर ने ब्रीच किया या अपने कमिटमेंट से। देन व्हाट आर द रेमेडीज वी हैव विद द ओनर? सपोज ने ब्रीच तो किया, तो ओनर क्या करता है? वो ईएमडी या सिक्योरिटी डिपॉजिट जो सबमिट की है बाय द बिडर ने, उसको वो इन कैश कर सकता है, राइट? तो ये एक प्रोविजन हो गया। या डिपेंड है कि वो कितना सीवियर नेचर का था ऑफेंस, या उसने कमिटमेंट डिफॉल्ट कितने सीवियर नेचर की थी, अकॉर्डिंगली उसके अगेंस्ट में वो लीगल एक्शन या सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर को भी वो रिपोर्ट दे सकते हैं टू टेक अ नेसेसरी एक्शन अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर बिडर। टिपिकली वो ब्लैक लिस्ट कर देते हैं उसको, या फिर नेक्स्ट को भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वो बिडिंग नहीं कर पाए, वो सब प्रोविजंस रहते हैं उनके पास, राइट? नाउ नेक्स्ट आर्टिकल आता है हमारा प्रीवियस ट्रांसग्रेशन। नाउ ये क्या होता है कि इसमें, एज वी डिस्कस आल्सो इनिशियली, जस्ट फ्यू वर्ड्स में, कि इसमें बिडर डिक्लेयर करता है कि फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स या किसी किसी में 5 इयर्स होता है, कि भाई उसने ट्रांसग्रेशन नहीं किया है इन बिडिंग प्रोसेस में। तो दिस इज डिक्लेरेशन व्हाट दे हैव गिवन। अ पार्ट ऑफ दैट दे आल्सो डिक्लेयर कि अगर ये इंफॉर्मेशन फॉल्स होता है, तो जो इंफॉर्मेशन मैंने ऊपर दिया है ये अगर फॉल्स है, देन डेफिनेटली यू कैन मेड द ओनर कैन डिस्क्वालीफाई फ्रॉम द टेंडर प्रोसेस में, और एनी अदर लीगल एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट देम। तो जो हमने प्रीवियसली आर्टिकल में देखा, या उसका ये ईएमडी को इनकैश कर लेते हैं, या आपके सीवीओ को इन्फॉर्म कर देते हैं, ब्लैकलिस्ट कर लेते हैं, सच टाइप ऑफ एक्शन आर टेकन अगेंस्ट दोज बिडर। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल आता है आपका इक्वल ट्रीटमेंट का। नाउ इसमें अगेन आई एम सेइंग बोथ बिडर बिडर सॉरी बिडर एंड ओनर कमिट करते हैं। फर्स्ट वी सी कि ओनर क्या कमिट करता है। ओनर कमिट करता है कि अगर सपोज दे आर मल्टीपल बिडर्स, नॉर्मली टिपिकल 3 रहते हैं, 3+ रहते हैं बिडर टेंडिंग में, कोई भी प्रोक्योरमेंट एक्टिविटी में, तो ओनर मेक श्योर कि वो सबसे इंटीग्रिटी पैक साइन करा के ले ले। he'll make sure कि everyone binded with this integrity pack। तो ये ओनर का ऑब्लिगेशन है, he'll make sure। सेम केस विद बिडर, व्हाट ही विल डू, कि जो उसके सब कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनसे वो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है टेंडर के बारे में टू गेट दी प्राइसिंग और अदर थिंग्स के बारे में, ही विल मेक श्योर बिफोर शेयरिंग दोस डिटेल वो सिमिलर टाइप ऑफ इंटीग्रिटी पैक और बैक टू बैक इंटीग्रिटी पैक इनसे करवा के ले हर एक कॉन्ट्रैक्टर से, राइट? तो दिस इज समथिंग लाइक कमिटमेंट्स बाय द बोथ दी पार्टी को करना पड़ता है। एंड सेकेंड थिंग, अगर सपोज कोई ब्रीच करता है, देन डेफिनेटली वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा इस बिडिंग प्रोसेस से। नेक्स्ट आर्टिकल आता है आपका ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मतलब आपका कौन सा ड्यूरेशन ऑफ द पैक। तो फर्स्ट है इफेक्टिव कब से तक है, और ये वैलिड कब तक है। तो मूवमेंट आप इस इंटीग्रिटी पैक में, अगर आपका बिडर साइन करता है, इट बिकम द इफेक्टिव फ्रॉम दैट डेट। तो टिपिकली एक्चुअली ऐसा होता है कि जो इंटीग्रेटेड पैक होता है, इसमें ओनर ऑलरेडी प्री साइन कर देता है, मतलब वो बिफोर शेयरिंग टू दी रिस्पेक्टिव बिडर, वो इंटीग्रेटेड पैक में खुद का साइन करके बिडर को दे देता है फॉर हिज सिग्नेचर। तो मोमेंट व्हेन बिडर साइन दिस डॉक्यूमेंट, तो वो दिस इंटीग्रेटेड पैक बिकम इफेक्टिव फ्रॉम दैट डे। तो बोथ दी पार्टीज के लिए इफेक्टिव हो जाता है। नाउ वैलिड कब तक रहता है? नाउ वैलिडिटी के लिए देयर आर टू सिनेरियोज एक्चुअली। Now, one suppose एक bidder है who becomes successful, उसको वो job allocate होता है, let's say L1, and he become the contractor or supplier in this case। और other bidders हैं who are not qualified actually, just means वो qualify नहीं हो पाए, उनको अब job या services नहीं मिली। Now in this case what happened, first we take कि जो L1 नहीं रहे, जिनको job award नहीं हुआ, तो typically रहता है कि date of signing से plus 12 month, दिस इज व्हाट आपका वैलिडिटी रहता है इसका, कि फ्रॉम डेट ऑफ साइनिंग से लेके प्लस 12 मंथ। तो व्हाट वी सेज कि 1 ईयर तक वैलिड रहता है। एंड आपका जो क्वालिफाई हो गया, जिसको जॉब अवार्ड हो गया, उसके लिए वैलिड कब तक रहता है? फ्रॉम द डेट ऑफ साइनिंग से अप टिल कंप्लीशन ऑफ द जॉब कंप्लीशन तक, और प्लस 12 मंथ फ्रॉम द कंप्लीशन डेट से। सो टिपिकली दिस टाइप ऑफ आपका वैलिडिटी रहता है। पर अगेन दिस समथिंग लाइक डिपेंड केस टू केस एंड ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन भी रहता है। तो ये आपका हो गया ड्यूरेशन।
सो द लास्ट आपका सेक्शन होता है अदर प्रोविजंस में और आर्टिकल अदर प्रोविजन में। सो आई से द गवर्निंग लॉ। तो टिपिकली अगर इफ यू आर इन इंडिया तो आपका लॉ ऑफ इंडिया रहेगा, आपका गवर्निंग लॉ ऑफ इंडिया रहेगा आपका। नाउ जुरिडिक्शन। नाउ जुरिडिक्शन एक्चुअली एज आई सेड कि इंटीग्रेटेड पैक्ट नॉर्मली आपके पीएसयूज ने ही अडॉप्ट किया है। तो सब पीएसयूज के ऑफिस आपके न्यू दिल्ली में है एंड बहुत कम के मुंबई और अदर पार्ट में है। तो टिपिकली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना हेड ऑफिस के लोकेशन को ही जुरिडिक्शन रखती है। तो दिस इज व्हाट जुरिडिक्शन वी हैव। देन नेक्स्ट आता है क्या, सिविलिटी। सो एवरीवन नोज द सिविलिटी कि सपोज ओवर द पीरियड, सपोज कुछ बिकॉज ऑफ चेंज इन लॉ और सम अदर फैक्टर से कुछ पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट बिकम इनवैलिड। तो इनवैलिड तो क्या होगा, दैट पर्टिकुलर पार्ट ही आपका इनवैलिड होगा, पर जो अदर प्रोविजन है आपके ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दैट रिमेन वैलिड। तो दिस इज समथिंग सिविलिटी है। देन अपार्ट ऑफ दैट कि सपोज आपके इंटीग्रिटी पैक में एनी चेंजेस करने हैं आपने, तो हैज टू बी इन राइटिंग एंड साइन बाय बोथ दी पार्टीज। तो दिस आर द टिपिकल पॉइंट्स आपके आपके अदर प्रोविजंस में होते हैं, राइट। सो विद दिस वी कैप्चर व्हाट आर द वेरियस प्रोविजंस वी हैव इन द इंटीग्रिटी पैक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये इंटीग्रिटी पैक एक्चुअली जो कंसेप्ट है ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ एंड हाउ इट केम टू इंडिया। सो सो एक्चुअली ये इंटीग्रेटेड पैक 1993 में ओरिजिनेट हुआ, और नॉट ओरिजिनेट एक्चुअली, 1993 में एक्चुअली उसके बाद ही डेवलप हुआ। देन इंडिया में 1997 में आया। देन 2006 में गवर्नमेंट ने इसको अडॉप्ट किया एंड 2007 में एक्चुअली हमारे जो सीवीसी है, आपके सेंट्रल विजिलेंस कमिटी, दे हैव रिकमेंडेड पीएसयू या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू अडॉप्ट एंड इम्प्लीमेंट दिस इंटीग्रेटेड पैक। सो इफ यू गो मोर डिटेल इन दिस, सो एक्चुअली ऐसा हुआ कि 1993 में स्पेशली इन जर्मनी में हमारे पीटर आइगन थे, ही इज ए रिटायर्ड बैंक ऑफ वर्ल्ड बैंक ऑफिसर, एंड उनके फ्रेंड के साथ मिलके उन्होंने एक नॉन प्रॉफिट एनजीओ ओपन किया एंड उनका उसका नाम था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो उन्होंने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एज ए नॉन प्रॉफिट एनजीओ को स्टैब्लिश किया एंड उनका मेन पर्पस क्या था, टू फाइट दी करप्शन। उनका पर्पस ये था एंड ऑल्सो टू अंडरस्टैंड द रूट कॉज ऑफ दिस करप्शन। तो ये उनका मेन मोटो बिहाइंड था, टू establish this transparency international. Okay, and during that over the period they had developed a called integrity pact. So आपको पता है integrity pact so special क्यों है, because it involve a independent external monitor जो आपका bidding process को monitor करता है, and this help to arrest the corruption in this government procurement especially. Okay, so this is how they develop the integrity pact. Then in India में 1997 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया करके एक बॉडी फॉर्म हुई। अगेन इट्स नॉन नॉन प्रॉफिट एनजीओ, एंड उनका भी प्राइम ऑब्जेक्टिव वही था कि टू ब्रिंग मोर ट्रांसपेरेंसी इन द बिडिंग प्रोसेस एज वेल एज टू इरेडिकेट द करप्शन in the public procurement, and they play a vital role to implement this integrity pact as a tool in India. तो as I said कि 2006 में this was introduced in India, and with the support of Central Vigilance Committee. And then what happened 2007 में Vigilance Committee ने अपने ऑफिशियल ऑर्डर थ्रू सभी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को ये ऑर्डर दिया कि प्लीज आप इसको अडॉप्ट कर लो एंड इम्प्लीमेंट कर लो इन ऑल मेजर प्रोक्यूरमेंट में। सो दिस वाज नॉट मैंडेटरी बट इट वाज जस्ट लाइक ऑर्डर कि आप इसको इम्प्लीमेंट करो, इज गुड फॉर अस। सो आपको पता ही है कि विजिलेंस का अगर आपको आता ऑर्डर तो आप ऑल पीएसयू प्रीफर टू अडॉप्ट दोस थिंग। पर इसमें वही था कि जो ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी इसको अडॉप्ट करती है, देन ही हैव टू मेक श्योर कि वो उसको इम्प्लीमेंट करे और इसके जो प्रोविजंस है उसको एडर एडर करे। तो इसका मेन जो प्रिंसिपल क्या था वही कि एक आपको इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर को हायर करना एंड यू हैव टू ऑथराइज हिम टू एक्सेस योर बिडिंग प्रोसेस को। तो दिस इज अ टिपिकल व्हाट
वी हैव इन दिस इंटीग्रिटी पैक के अंदर। सो ब्रॉडली व्हाट वी हैव कैप्चर सो फार, हमने अभी तक देखा कि इसका ओरिजिनेट कैसे हुआ। तो वी सॉ कि 1993 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल फॉर्म हुआ एंड दे आर द डेवलपर ऑफ दिस टूल। इंडिया में आपका ये एक्चुअली 1997 में आया। दे हैव ओपन देयर, दे फॉर्म देयर organization as a Transparency International India, and then through CVC इंडिया में इसको अडॉप्ट किया। एंड देन इसके अंदर टिपिकली जो मेन पर्पस सोल जो कहते हैं इंटीग्रेटेड पैक की, वो है आईईएम, जो एक्सटर्नल मॉनिटर है हमारा। एंड ऑल्सो वी सॉ द व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस इंटीग्रेटेड पैक की टिपिकल इंटीग्रेटेड पैक में होता क्या है। तो दिस इज व्हाट वी हैव इंटीग्रेटेड पैक। नाउ जस्ट टू कि जस्ट इसी के कंटिन्यूशन में कि इज नॉट दैट कि इंडिया में इंटीग्रिटी पैक्ट ही है टूल जो करप्शन को एलिमिनेट करता है या करप्शन को अरेस्ट करता है। दे आर ऑल्सो लॉ, वी हैव वेल प्लेस लॉ इन इंडिया ऑल्सो, लाइक हमारा आईपीसी है। देन वी हैव सम सर्टेन प्रोविजन इन इनकम टैक्स। देन वी हैव द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है हमारे पास, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट भी है। देन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी है। So we have well placed this act itself, which help to arrest this corruption in India. Then apart of that, we have government body, well established government bodies भी है, जैसे कि आपका आईटी डिपार्टमेंट है, सीवीसी है, देन सीबीआई है। दे ऑल प्ले अ वाइटल रोल टू टू एलिमिनेट दिस करप्शन, और जो करप्शन को अरेस्ट करने के लिए। अपार्ट ऑफ दैट वी हैव एनजीओज, कि जो भी इंडिया में वर्क करते हैं टू एलिमिनेट दिस करप्शन। So we go to the very first slide where we started actually. So as I said कि इंडिपेंडेंट, तो हमारा जो सॉरी ये इंटीग्रिटी पैक्ट है, तो as I said ना कि their its definition is defined in 4 points, like it's a integrity pact tool which help government to fight corruption in public procurement. So as I said कि why कि हमने अब तक very specifically गवर्नमेंट क्यों बोला है। एज आई सेड कि जो सीवीसी है उसने स्पेशल एक ऑर्डर दिया है हमारे पीएसयू पीएसयू को, कि अंडरटेकिंग यूनिट्स को, कि आप ये इसको अडॉप्ट करो। नाउ टिपिकली प्राइवेट एंटिटी आल्सो कैन अडॉप्ट दिस इंटीग्रिटी पैक, बट व्हाट द प्राइवेट इंटीग्रिटी बिलीव्स दैट कि उनका इन हाउस जो प्रोसेस है इटसेल्फ इज वेरी वेरी कहते हैं ना फर्म है, जो जो करप्शन, जो जिस टाइप ऑफ प्रोक्यूरमेंट जो करप्शन होते हैं उनको वो अरेस्ट कर सकते हैं। एंड दे हिमसेल्फ इंटरनल ऑडिटर्स या मॉनिटर्स हैं जो ये प्रोसेस को मॉनिटर करते हैं। दैट्स रीजन प्राइवेट कंपनीज हैं वो जो आईपी को अडॉप्ट नहीं करते टिपिकली। दिस इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग। सो दैट्स व्हाई इन द डेफिनेशन itself कि इसे गवर्नमेंट ने इसको अडॉप्ट किया है। एंड आई सेड कि the sole purpose to establish this integrity integrity pact tool to eliminate the corruption. तो that's reason it we says कि ये करप्शन को फाइट करने के लिए टूल को बनाया गया है। So I believe that we have done with this session. So now you guys well aware that कि integrity pact का purpose क्या था and what is integrity. So thank you guys. Take care.